Hello students, today we are going to cover chapter 1st of class 5th. The name of the chapter is The Earth and its Model, the Globe. Okay, so let's start the chapter. So the synopsis of this chapter is, what is the globe? Globe क्या होता है? Parallels of latitude. Parallels of latitude क्या होता है? Lines of longitude. Locating a place, longitudes and time zones. Okay, about these topics we are going to study in this chapter. Let's start. In this chapter, you will learn about globe, parallels of latitude, lines of latitudes, and time zones. Our Earth is a special planet because it supports life. Life exists due to presence of air and water. हमारा अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट है. 7 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर अवेलेबल है. The earth is a home of human beings, animals and plants. अर्थ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके, इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. दे फियर दैट ट्रैवलिंग टू फार वुड मेक देम फॉल ऑफ द एजेस. पुराने ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि अर्थ सर्कल नहीं है, अर्थ इस तरह से फ्लैट शेप की है. ठीक है, और अगर वो बहुत दूर तक चलेंगे तो वो इन एजेस से नीचे गिर जाएंगे. ठीक है, ऐसा वो मानते थे. However, philosophers and explorers like Pythagoras, Aristotle, Magellan, and Copernicus prove that Earth is round in shape. Sir Isaac Newton later explained that Earth is not a perfect sphere but lightly flattened and false. कुछ philosophers और explorers थे, Pythagoras, एरिस्टोटल, मैगेलन एंड कॉपरनिकस, जिन्होंने प्रूव करा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड शेप में है. ठीक है, ये लोग मानते थे कि अर्थ एक सर्कुलर राउंड शेप है, बट फिर इसाक न्यूटन ने प्रूव करा कि ये सर्कुलर राउंड है, ये ऊपर से नीचे से थोड़ा सा टिल्टेड है. मतलब किसी सर्कुलर शेप को ऐसे दबा देते हैं तो वो हल्का सा पिचक जाती है, तो कुछ इस शेप की हमारी अर्थ है. नेक्स्ट, a globe. A globe is a man-made model of the earth. It is a simplest and the most accurate way to represent the earth. ठीक है, एक ग्लोब एक हम इंसानों ने एक मॉडल बनाया है जो कि हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है. ये एक बहुत ही एक्यूरेट वे समझने का कि हमारी अर्थ कैसी दिखती है. ओके, The map drawn on the surface of the globe shows the relative sizes and shapes of the continents and oceans. इसमें जो ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दिखाई गई है, ये बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट वे है कि कितना कितना पार्ट हमारी अर्थ ने लैंड मास में और ओशन में कवर किया हुआ है. It also shows the correct location of different places and features in the relation to one another. बहुत ज़्यादा अलग अलग places को identify करने में बहुत ज़्यादा helpful device है. Children, you know that there are 7 continents such as Asia, Africa, South America, North America, Europe, Australia, Antarctica, and 4 other oceans which is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean are shown in different colors on the globe on the map. यानी ये सारी चीजें मैप में अलग अलग कलर से दिखाई गई है जिससे वो अलग से विजिबल हो जाए. The biggest land masses surrounded by water bodies on all sides are called continents. Continents क्या होता है? जो लैंड मास अर्थ पर है. ठीक है, ओशन वाटर बॉडी से जो लैंड मास घिरा हुआ है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जो लार्ज लैंड मासेस घिरे हुए हैं. और हमारे इंडिया में हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं. ओके, The globe has 2 points, northern point and southernmost point. ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को northernmost point और नीचे वाले पॉइंट को southernmost point. ठीक है, northernmost point is called North Pole and the southernmost point is called South Pole. ठीक है, for example ये अर्थ है तो इसको North Pole बोलेंगे और नीचे वाले को South Pole. ठीक है, parallels of latitude. On the globe, you will see lines running parallel to the equator, 0 degree latitude. These lines are called parallels of latitude. They run from east to west. ठीक है, तो ये जो हमारे अर्थ में लाइंस ऐसे जा रही हैं, they are parallel to each other. Parallel lines होती हैं जो कभी intersect नहीं करती. For example, ऐसे they both lines will never meet each other whenever you expand it so far. They will never meet. Okay, such lines are called parallel lines. Okay, so the imaginary lines which are surrounding it, they are parallel to each other, which are called parallels of latitude. Okay, they run from east to west. It's very important कि parallel lines कैसी हैं, east to west है, यानी कि east to west directions में जा रही है. Okay, they are numbered from the equator
ठीक है, यानी कि होता है ना किसी भी चीज को मेजर करने के लिए बीच में से कोई एक सेंट्रल चीज मान लेते हैं और वहीं से फिर सब चीजों को लोकेट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो सेंट्रल लाइन है जो अर्थ के एकदम सेंटर से खींची गई है, देखो ऐसी कोई लाइन है नहीं, सिर्फ हमने इमेजिनेशन की है, तो जो सेंटर से कोई लाइन जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास कर रही है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री, और हम उसी से सारी चीजें फिर मेंशन करते हैं। ठीक है, द पोल्स आर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब आप खुद ही देखो जब भी अर्थ है बीच में 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, तो कॉर्नर्स तक पहुंचने के लिए हमें 90 डिग्री जाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री पर जो है हमारे पोल्स ऊपर और नीचे के लोकेट होते हैं। The North Pole is marked at 90 degree and South Pole is at 90 degree south. They never meet one another as they are parallels. ठीक है, वो parallels है इसलिए वो कभी एक दूसरे से meet नहीं करते। The Earth has two endpoints. Earth के दो endpoints होते हैं, North Pole and South Pole. ठीक है, ऊपर वाला North Pole, नीचे वाला South Pole. The equator is the longest parallel and first it is called greatest circle. लॉजिकल है, पूरा सर्कल है। आप समझते हैं सर्कल क्या है? सर्कल एक छोटी छोटी रिंग्स से तो है, छोटी छोटी रिंग्स, बड़ी बड़ी रिंग्स, ऐसे ऐसे करके एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो अगर आप समझो तो ये छोटी छोटी रिंग्स ऐसे से बड़ी होती है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जारी रखती है, तो बीच वाली रिंग सबसे बड़ी होगी। ये लिखा हुआ है कि इक्वेटर सबसे बड़ी, इक्वेटर से जो पैरेलल लाइन से सर्कल बन रहा है सबसे बड़ा सर्कल बनता है, जिसको हम ग्रेटेस्ट सर्कल बोलते हैं। There are some other special parallels, और भी पैरेलल लाइंस है, पर उनमें से भी कुछ स्पेशल क्लासिफाई की हुई है, जिनको हमने क्या बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ऊपर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, और 23 एंड हाफ डिग्री नीचे साउथ में हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इतना ऊपर जाने से ये लाइन और यहाँ पे जाने से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर यानी कि 60 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पर हमें एंटार्क्टिक सर्कल बनेगा, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर पे, और उससे 66 एंड हाफ डिग्री नीचे साउथ में जाने से हमें एंटार्क्टिक सर्कल मिलेगा। ठीक है, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर पे। The latitudes are 181 in number with equator. These important parallels help in dividing Earth into various regions. अब इन लाइंस को इमेजिन करने की, अर्थ को इस तरह से बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी हेल्प करते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस को समझने में, और हीट जोन एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बहुत सारे हीट जोन्स भी हम इससे कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इफ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखें, you will find semicircles joining the north poles to the south pole. तो आप देखिए यहाँ पे ग्लोब है, तो आप देख सकते हैं कि एक सेमी सर्कल है, छोटा सा यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है। इमेजिन करिए आप, ऐसा कुछ है नहीं अर्थ पर। लॉन्गिट्यूड्स आर 360 नंबर एंड ऑल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है? 360 नंबर। अच्छा, मैंने ऊपर यहाँ पे ये वाली चीज नहीं बताई कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 181 होता है नंबर में। ठीक है, यानी हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स होते हैं, इक्वेटर को हटा दे तो 180 होता है टोटल, 90 ऊपर 90 नीचे। ठीक है, और इक्वेटर को भी मिला दिया तो 181। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स होते हैं 181 और लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं 360 नंबर एंड ऑल आर इक्वल, तो सारे बराबर होते हैं। ठीक है, these lines are called meridians of longitude. Meridians of longitude क्या होती है? जो longitudinal lines खींची हुई है, वो कितनी है 360। 1884 में सारी कंट्रीज वर्ल्ड की ये डिसाइड किया था, जो मेरिडियन है passes through the observatory at Greenwich near London in the United Kingdom would be taken as the starting line. It is marked as 0 degree. This is called the Greenwich line or prime meridian. ठीक है, यानी 1884 में सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस उनमें से कोई एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि स्टैंडर्ड लाइन होगी, जिसपे हम सारी अदर कैलकुलेशंस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल में देखना हो। तो इस पे हमने ग्रीनविच, जो कि लंदन में यूनाइटेड किंगडम के पास है, उसको चुना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से खींची गई है, तो वो ग्रीनविच लाइन से, यानी कि ग्रीनविच एक एरिया है, वहां से ड्रॉ हुई है। ठीक है, एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे टॉलमी, जिन्होंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सिस्टम इन्वेंट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
Locating a place. To find any place on Earth, we need both latitudes and longitudes. The pair where these two lines meet is called exact location of that place. This cruising of lines create a grid, making it easier to identify any location on maps and globes. ठीक है, अर्थ पर किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ग्लोब की जरूरत होती है. ग्लोब हमारी हेल्प करता है और उसमें हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों लाइंस चाहिए होती है, क्योंकि जहां पर वो दोनों लाइंस मीट करती है वहीं पर हमारी एग्जैक्ट लोकेशन होती है. ठीक है, और उनको ग्रिड्स बोलते हैं. ठीक है, जहां पर ये मीट करती है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रिड. और वो हेल्प करता है किसी भी लोकेशन को इजिली आइडेंटिफाई करने में. ठीक है, देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि टोटल 360 होती है. एक तरफ 180, दूसरी तरफ 180, और जो स्टैंडर्ड लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है, जो कि कहाँ पर है, ग्रीनविच में. देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, the meridians numbered as 0 degree and 180 degree join to form a full circle around the earth. ठीक है, ये मिलकर पूरा एक सर्कल क्रिएट करती है. मेरिडियंस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. ठीक है, they divide the earth into two equal parts named as the eastern and western hemisphere. ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि लैटिट्यूड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में कर रही थी. सिमिलरली the meridians which are to the east of prime meridian are marked as eastern degree, and those to the west are marked as western degree. For example, India is located to the east of the prime meridian. ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ है उसको ईस्टर्न डिग्री, और वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न डिग्री, जैसे नॉर्थ डिग्री और साउथ डिग्री भी था. और हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में. ठीक है, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. ठीक है, द लैटिट्यूड्स मतलब अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ये इंडिया हो गया. ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की साइड लोकेटेड है इंडिया. ठीक है, the latitude and longitudes cross each other and forms a network is called grid. ठीक है, लैटिट्यूड से लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करती है और एक नेटवर्क ऑफ क्रॉस सेक्शंस फॉर्म हो जाता है, जिनको ग्रिड्स बोलते हैं. अभी बताया भी था. The grids helps in locating places. इस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, किसी भी लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की हेल्प से. ओके, longitudes and time zones. There is a relationship between longitudes and time zones. ठीक है, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन्स के बीच में. एज द अर्थ रोटेट्स एवरी प्लेस हैज इट्स सनराइज, सनसेट एंड मून. जब अर्थ रोटेट करती है तो हर प्लेस का अपना अपना, कहीं सन की लाइट रेज पड़ रही होगी, कहीं नहीं पड़ रही होगी, तो अलग अलग जगह पर दिन रात होंगे ऑब्वियसली. तो व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पीक इन द स्काई इट्स नून. तो जब अर्थ हाईएस्ट पीक पे होता है स्काई के, तो वहां पर रात हो जाती है. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि हमें हेल्प करता है समझने में टाइम को. लोकल टाइम क्या होता है, a local time can be reckoned by the shadow cast of the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunrise. ये लोकल टाइम को मान सकते हैं कि ये शेडो कास्ट है सन का, सन की शेडो कास्ट से, जो कि सबसे कम होता है रात में और ज्यादा होता है दिन के टाइम पर. ठीक है, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. जब प्राइम मेरिडियन जो होता है, प्राइम मेरिडियन क्या थी, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन थी अर्थ की, जो कि स्टैंडर्ड लाइन मानी जाती है. जब ये सन के हाईएस्ट पॉइंट पर होती है स्काई में, तो सारी प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिडडे और नून. तो आधा दिन होता है, आधी रात होती है उस टाइम पर. As the Earth rotates from west to east, the places to the east of the Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those will be behind it. ठीक है, जब अर्थ, देखो अर्थ कहाँ रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट. ये अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ऐसे अर्थ रोटेट करती है. तो अर्थ जब रोटेट करती है, जो प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच है वो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच से आगे होते हैं. ठीक है, यानी जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का टाइम वेस्ट ऑफ ग्रीनविच के टाइम से आगे चल रहा होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू डिफर. जो लोकल टाइम होता है प्लेसेस का वो अलग अलग होता है हर मेरिडियंस में, क्योंकि सनलाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट में पड़ रही है. इसलिए दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपल. देयर आर अबाउट 30 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इंडिया. सिर्फ इंडिया में ही 30 मेरिडियंस पास हुई है. ठीक है, यानी हर जगह अलग अलग टाइम चल रहा है.
दैट मीन्स इंडिया हैज 30 लोकल टाइम्स, यानी कि इंडिया में 30 लोकल टाइम्स है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, देखो ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेटर। अगर हम इसको इक्वेटर बोले, इसको प्राइम मेरिडियन बोले, तो जो इंडिया होता है वो राइट ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, और एक और चीज, जो अगर ये ग्लोब है तो जो इंडिया होता है वो ग्लोब के सेंटर में होता है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्लोब, इंडिया एकदम ग्लोब के सेंटर में होता है। ठीक है, to avoid this confusion, the local times of a central meridian is taken time for the whole country. This is called standard time. ठीक है, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो सेंट्रल मेरिडियन में टाइम होता है, हमने उसी को अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। जो टाइम वहां पर होगा वही हम पूरी कंट्री का टाइम मानेंगे। ठीक है, some countries like Russia have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. ठीक है, अब देखो रशिया ये रहा यहाँ पर, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, इसलिए इसके पास एक से ज्यादा क्या है, टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि इस पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसमें एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम आता है रशिया के केस में। ठीक है, उससे इंडियंस मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट पासिंग थ्रू इलाहाबाद इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। When it's known on its longitude, the time is taken as known for the whole country. This is known as Indian Standard Time. ठीक है, इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 82.5 ईस्ट में जाके इलाहाबाद से पास करी है, जिसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना है। हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम और पूरी कंट्री का अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, when it's known on its longitude, जब इलाहाबाद में रात होती है उनके उसके लॉन्गिट्यूड पर तो टाइम ऑफ रात मानते हैं पूरी कंट्री के लिए, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। ठीक है, इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन लॉन्गिट्यूड ऑफ 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट एंड द लैटिट्यूड्स ऑफ 80 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इंडिया यहाँ पर इतने लॉन्गिट्यूड्स पर सिचुएटेड है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया है सेंट्रल, और ये किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंडिया है सेंट्रल पोजीशंस ऑन द ग्लोब, मैंने बताया था ग्लोब में इंडिया सेंट्रल पोजीशन पे आता है। ठीक है, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। पैरेलल लाइंस टू द ग्रेटेस्ट सर्कल आर कॉल्ड, मैंने बताया था जो सर्कल है उसके बीच में ही सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, और वो कहां से पास कर रहा है, इक्वेटर से। ठीक है, इन इंडिया लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82.5 ईस्ट पासेस थ्रू, इंडिया में जो सेंट्रल टाइम है वो कहाँ का माना गया है, इलाहाबाद का, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से। इक्वेटर इज लोकेटेड एट, इक्वेटर कहाँ पर लोकेटेड है, इक्वेटर 0 डिग्री पे लोकेटेड है, और यहाँ से ही हम बाकी के सारे डिग्रीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, The Earth has two endpoints. अर्थ के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये एंड पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ थोड़ी सी फ्लैटेंड है। अगर वो बिल्कुल सर्कुलर होती तो सर्कल के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, देखो ये अर्थ हो गई, ये इक्वेटर हो गई, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which is 23.5 north. Okay, the prime meridian passes through, prime meridian कहाँ से पास कर रही है, so prime meridian passes through, prime meridian मैंने बताया था ग्रीनविच से पास कर रही है, और इसीलिए इसको ग्रीनविच भी बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन। और ये कहाँ पर है, लंदन में, लंदन के पास है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, डैश हैज सेंट्रल पोजीशंस ऑन द ग्लोब, किसकी ग्लोब में सेंट्रल पोजीशन है, तो इंडिया ग्लोब में सेंट्रल पोजीशन पर है। द डैश इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब एक अर्थ का ही मॉडल है जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। The tropic of Cancer is located in the dash hemisphere. Tropic of Cancer मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। मेरिडियंस रन फ्रॉम, मेरिडियंस कहाँ से कहाँ तक है, मेरिडियंस क्या होते हैं मैं फिर से बता देती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लंबी लंबी लाइंस, और लैटिट्यूडनल मतलब जो लेटी हुई लाइंस है, ठीक है। तो लंबी लंबी लाइंस जो अर्थ की वो उनमें से एक प्राइम मेरिडियन है, और वो कहां से कहां तक है, ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। A globe is a man-made model of the earth। बिल्कुल सही बात है, हम ह्यूमंस ने एक ग्लोब का स्ट्रक्चर बनाया है लोकेशंस और प्लेसेस को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए और अर्थ को और ज्यादा स्टडी करने के लिए। The equator divides the earth into two equal parts। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल सही है, और प्राइम मेरिडियन भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब पैरेलल्स आर सर्कल्स, के पैरेलल सर्कल्स है, अर्थ में जो पैरेलल लाइन है वो सर्कुलर्स है, राइट, करेक्ट ऑप्शन है। The earth has no end points। अर्थ का कोई एंड पॉइंट नहीं है, अर्थ का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, अगर वो सर्कल होता तो, लेकिन अर्थ इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्फेरिकल, इट इज flattened from its top और bottom, okay, so it's not the correct option। अर्थ हैज एंड पॉइंट्स, और कौन कौन से एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। Arctic Circle is located at 66 degree east longitude। देखो 66 degree and half तो सही है, बट longitudinal नहीं है, it's not longitudinal, ये गलत लिखा है, ये latitudinal होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि Arctic Circles latitudinal lines होती है, longitudinal lines नहीं होती, ठीक है। Match the following। प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, जो कि ग्रीनविच, जो कि यूएसए के पास है, वहां पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होती है, क्या पूछा है इसमें, 23.5 नॉर्थ में होती है, बिल्कुल सही है। लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइंस इक्वेटर से पास करती है, उससे सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल बनता है, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ इसमें, ग्रेटर सर्कल बनता है। नॉर्थ पोल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो कि 90 डिग्री में बनता है इक्वेटर से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू पैरेलल्स डिफर फ्रॉम मेरिडियंस, पैरेलल लाइंस मेरिडियन से कैसे अलग है, तो सबसे बड़ा द की डिफरेंस इज दैट दिस इज एन अर्थ, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो मेरिडियंस होती है वो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, ठीक है। मैं इसको मेरिडियंस को पर्पल कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है, और जो पैरेलल लाइंस होती है वो ऐसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, मेरिडियंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, पैरेलल्स लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहली बात तो ये इलाहाबाद से होता है, 83 समथिंग डिग्री पर होता है ईस्ट की साइड, ठीक है, और इसमें जो टाइम होता है वही हम पूरी कंट्री का टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। हाउ आर यू श्योर अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, आप कैसे श्योर है कि अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब नहीं है, तो इसके लिए हमने सैटेलाइट्स वगैरह से पता चला है, और लूनर एक्लिप्स अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में, उससे पता चला है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कोई इंसान सीधा सीधा चलता रहता है तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि अर्थ एकदम फ्लैट नहीं है, एकदम सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिससे हमें ये चीज पता चली है। ओके, वेयर डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई, तो कहाँ पर लाई करती है ये, मैं फिर से बता देती हूँ, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, कहाँ, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, सेम, ठीक है। ओके, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन, तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन है डायरेक्ट रिलेशन, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ये हेल्प करती है हमारी टाइम बताने के लिए, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल, आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है, ठीक है, यानी 4 मिनट में होता है, मतलब जब हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट हो जाते हैं, यानी 4 मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 360 डिग्री का घूमेगी 24 घंटे में, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 24 घंटे में हमारी अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल और टाइम जोन का डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि हमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा अर्थ के टाइम्स वगैरह बताने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।